again, and today, as you know, we have to start a full-fledged question. No? So, in the full-fledged question, what we will find, the question will be given to you in front of you. That includes the receipt and payment account and some of the additional information. And today, we have to prepare the income and expenditure account and balance sheet at the beginning and at the end of the year, right? So students, this is the question in front of you. There is a receipt and payment account. You will see here in front of you there is a receipt and payment account. It is showing opening balance of cash rupees 40,000. It is written by to balance BD. I hope this is clear to all of you. Nisha, screen is clear. Yes, sir. So better take the screenshot first. Everyone should take the screenshot first. I'll be explaining the question. After that, I'll be solving. Okay. So here, the opening balance of 40,000 is given of cash during the year ended 31st March 2020. And after that you have received donation 50,000. Then after you have received donation for tournament. Okay, donation for tournament received. RECD received 1,20,000. Right? So beta, there are two types of donation. You can differentiate easily. One is written only donation and second one is written donation for tournament received. This means first donation जो 50,000 का है, that is a general donation, and second donation is a special donation. You know, the special income should be recorded in the liability side, right? Next, subscription. As you know, subscription is the main source of income for the charitable organization or NGO, non-government organization, because all the members who joined to this institution, they have to subscribe a fixed token money every year. Okay, so this is what subscription you have received rupees 1,50,000. Next, entrance fee. You know entrance fee. When a member joins the firm, they need to make payment for the entrance fee. This is also called admission fee, right? So entrance fee is what kind of income? It is the revenue income or capital income. So there are confusion or dispute between the accountant. So I have taught already in the revision time before unit test कि if there is no information given regarding entrance fee, कि whether it will be treated as a capital or revenue, so you will record it as a revenue income or revenue receipt, hence to be shown in income and expenditure account until and unless is written special notification about this. Okay, यानी जब तक कि एंट्रेंस फी के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि करना क्या है, तो हम एंट्रेंस फी को इनकम में दिखाते हैं. फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. सो बेटा, ओल्ड न्यूज़पेपर तो रद्दी वाला हो गया, ये तो डेली बेसिस का हो गया कि हर महीने पेपर आता है इकट्ठा करके बेच देते, तो ये रेवेन्यू इनकम हो गया, इनकम में दिखाना चाहिए. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. सो बेटा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट होता है. तो जो 4,000 रुपया मिला वो तुम्हारा कैश में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब हम किसी ओल्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मीन्स गेन हुआ या लॉस हुआ, वो हमें देखना होता है. तो कैसे पता करते हैं? तो जिस भी किसी फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल करते हैं तो उसका बुक वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है.
या तो उसी सेलिंग इंफॉर्मेशन के ठीक नीचे ब्रैकेट में दिया होता है, जैसा कि यहाँ दिया है 5000, या अलग से कहीं दिया होता है। अगर से बुक वैल्यू नहीं दिया होता कहीं पर भी, तो इसका मतलब हमने उस एसेट्स को बुक वैल्यू पर ही सेल किया है, यानी उस पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर बुक वैल्यू दिया है तो हम कंपेयर करेंगे। तो आप चेक करो, यहाँ पर बुक वैल्यू फर्नीचर का 5000 दिया है, राइट, और आपका जो रिसिप्ट साइड में 4000 दिया हुआ है। इट मीन्स कि आपने जो ओल्ड फर्नीचर था उसे 4000 में सेल किया, जबकि उसका बुक वैल्यू 5000 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1000 रुपये का लॉस हो गया, राइट। 1000 रुपये का जब लॉस हुआ तो आप उस लॉस को सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो सिर्फ प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते, ठीक है। क्योंकि ये जो 4000 रुपये आया वो ऑलरेडी जब रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे, जो 6,12,000 दिख रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। नेक्स्ट, ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी ये एक रेगुलर इनकम होता है, रिकरिंग नेचर का होता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसको इनकम में दिखाना चाहिए, ठीक है। अब आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इनकम है, लेकिन ये किस प्रकार का इनकम है। सो अगर इन्वेस्टमेंट किसी फंड के पैसे से किया गया है, तब तो उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इनकम वो कैपिटल इनकम माना जाएगा और उसे उसी फंड में ऐड कर दिया जाता है बैलेंस शीट में। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट जनरल इन्वेस्टमेंट है, यानी किसी फंड के पैसे से, स्पेशल फंड के पैसे से नहीं बनाया गया है, नहीं खरीदा गया है, तो उसका इनकम जनरल इनकम माना जाएगा। सो आप देखो, मैंने एरो करके दिखाया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और बाय जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। सो इसका मतलब ये जो मिला है हमको जनरल फंड से मिला है, जनरल फंड के इन्वेस्टमेंट का, तो ये जनरल इनकम माना जाएगा और इसे इनकम साइड में दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के, राइट। अब आता है बेटा लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, जब कोई मेंबर लाइफ टाइम तक उस संस्था का मेंबर बनने के लिए एक फीस देता है, तो ये स्पेशल फीस हुआ, किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा और इसे लायबिलिटी में दिखाना चाहिए, राइट। लीगेसी, लीगेसी यू नो द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, जो अपनी विल में लिखवाता है, वसीयत में लिखवा कर जाता है मरने से पहले कि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी चैरिटेबल संस्था को दान में दे दी जाए। तो इस संस्था को जिसका रिसिप्ट और पेमेंट है, उसको अगर लीगेसी मिला तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि ये हमेशा मिलने वाला इनकम नहीं है। फिर टूर्नामेंट फंड, तो ये स्पेशल फंड हो गया। फंड कोई भी हो, मैंने पढ़ाया था, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट होता है परमानेंट, एक होता है कैपिटल फंड, और टूर्नामेंट फंड वगैरह स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है। तो फंड इसको हम चूंकि लायबिलिटी में दिखाएंगे। जनरल फंड, जनरल फंड भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी में। फंड कोई भी होता है लायबिलिटी में जाता है, चाहे वो जनरल हो या स्पेशल हो। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो देखो बेटा दो तरीके का इंटरेस्ट मिला है। एक ऊपर ब्लू कलर से लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट 36,000, और एक यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसिप्ट लास्ट में टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब टूर्नामेंट के फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया गया उस पर इनकम मिल रहा है, तो वो इनकम बेटा कहाँ दिखाएंगे हम लोग, स्पेशल इनकम हो गया, उसी बैलेंस शीट में आएंगे, राइट। और अभी जो अब हम लोग को करना है, इधर हो गया रिसिप्ट में, पेमेंट में पढ़ लेते हैं। सो इस साल आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर परचेज्ड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, चूंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होता है, पेमेंट में हमेशा एसेट्स ही आता है, खर्च होगा या assets होगा। तो ये टूर्नामेंट फंड के पैसों को इन्वेस्ट किया है, और कहाँ इन्वेस्ट किया है, 10% सिक्योरिटीज़ पे। तो बोला है 10% परचेज ऑन 1 जुलाई 19, तो 1 जुलाई को आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा।
फिर है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि इंटरेस्ट मिला है 36,000, तो 12% के रेट से आपने किया है, बट डेट नहीं दिया है कि कब खरीदा गया है। तो इसका मतलब बिगिनिंग में ही खरीदा गया है, डेट नहीं दिया होता है तो मानते हैं ईयर के बिगिनिंग में खरीदा गया है, यानी पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 1 साल का। फिर है टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, तो बेटा ये स्पेशल एक्सपेंसेज है, क्योंकि ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेज टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड हो गया तो फंड से माइनस हो जाएगा। बुक परचेस्ड, बुक्स परचेस्ड यानी ये एक एसेट्स है, क्योंकि ये हमारी लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा, जिससे लोग आएंगे पढ़ेंगे फिर रख देंगे, और इसे यूज़ करते हैं हम हमेशा। बाइसिकल इज आल्सो एन एसेट्स। रेंट पेड, तो ये रेकरिंग नेचर का हो गया, हमेशा हर महीने रेंट पेमेंट करना पड़ता है, हर साल पेमेंट करना पड़ता है। लाइक वाइज सैलरी पेड, तो सैलरी भी हमें हर एक एम्प्लॉय को पेमेंट करना होता है, ठीक है। सो बेटा अब ये रिसिप्ट में टोटल देख लो 15,12,000 आ रहा है, और पेमेंट में तुम्हारा 1 लाख कितना आ रहा है तुम्हारा 9 लाख आई थिंक आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो 6,12,000 बैलेंस बच रहा है। अब बैलेंस शीट ही देखो, बाई बैलेंस शीट ही लिखा होगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट बनाया उसमें मल्टीपल कलर हमने यूज़ किया है लिखने में। सो बेटा ध्यान रखो, जितना ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, वो रिवेन्यू से रिलेटेड मैंने लिखा है, और जो रेड कलर है वो कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक ब्लू कलर का है, वो सिर्फ अलग करने के लिए बताया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा जनरल है, ठीक है, रेवेन्यू इनकम होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इनकम है, और यही टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इनकम जो लास्ट में है वो तुम्हारा स्पेशल है। तो ठीक है, जैसा कि वेरी फर्स्ट डे हमने पढ़ाया था बोर्ड पे कि रिसिप्ट और पेमेंट में 2 तरीके का रिसिप्ट होता है और 2 तरीके का पेमेंट, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू, उसी तरह पेमेंट में भी। सो इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं तो रिसिप्ट पेमेंट में से जो रेवेन्यू पेमेंट्स यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रेवेन्यू इनकम को इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, और जो कैपिटल वाला बच जाता है उसे हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो हमें पिक करना होता है, तो आप चेक कर लो, खुद ही देखने से पता चल जा रहा है कि बुक्स परचेज, बाइसिकल, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज और इन्वेस्टमेंट फर्नीचर और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज आल्सो एन एसेट्स, बट हमने उसको ब्लू से सिर्फ कहा किया है समझाने के लिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होता है, ठीक है। तो वो भी बैलेंस शीट में ही जाना है। और इधर से डोनेशन फॉर टूर्नामेंट रिसिप्ट, तो स्पेशल डोनेशन हो गया, बैलेंस शीट में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसी, टूर्नामेंट फंड, जनरल फंड और इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दिस ऑल आर आल्सो कैपिटल इन रिसिप्ट। सो इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आई होप कि यू आर हैव टेकन दी स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हम लोग अब आते हैं इस पे, ओके। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन you will see students, it is saying there was opening balance of furniture of rupees 15,000. Opening balance means कि this is the balance on 1st April, ठीक है, 1st April का बैलेंस। तो अब आप लोग ध्यान दो इसको कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। सो ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का है 15,000, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग था 20,000 आउट, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लास्ट ईयर का था 10,000, क्रेडिटर्स फॉर रेंट 5,000 और बिल्डिंग 20,000 का। ये सब पिछले साल के बिगनिंग में था, मतलब इस साल के बिगनिंग में था, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 2020 को क्या क्या था मेरे पास, देयर वाज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 8,000, outstanding rent 3,000, books and buildings are subject to charge depreciation at 10% per annum, current subscription includes rupees 6,000 for the next year, and कह रहा है आपसे कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पता है ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए, ओपनिंग कैपिटल फंड यहाँ पर नहीं दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड जब नहीं दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा
ओपनिंग कैपिटल फंड पता करने के लिए। तो बेटा हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। आप देखो कि कैसे हो रहा है। जस्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ओके, so you will find first of all you should write 1 minute. Yes, so you should write the balance sheet, ठीक है, एज एट 31 मार्च 19 लिख सकते हो पिछले साल का, या ओपनिंग है तो बेटर होगा आप लिखो एज एट 1 अप्रैल 2019, ठीक है, और करके लिखा है, दोनों में से कोई एक लिख लो। सो सबसे पहले हम एसेट्स का इंफॉर्मेशन हमको दिख रहा है ओपनिंग में एडिशनल। सो कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 15,000, तो देखो फर्नीचर 15,000 लिखा है। फिर सब्सक्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग 20,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी 20,000 लिखा है ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 10,000, तो लायबिलिटी होगा, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन देखो तुम्हारा 10,000 लिखा है। क्रेडिटर्स फॉर रेंट लिखा हुआ है तुम्हारा 5,000, सो देखो बेटा क्रेडिटर्स फॉर रेंट 5,000 लायबिलिटी। बिल्डिंग दिया हुआ है 20,000, तो बिल्डिंग भी 20,000 इधर लिख दिया। तो जो जो चीज़ें दिया हुआ था वो हमने लिख दिया। तो आपको पता है C प्लस एल इजक्वल टू ए होता है, या A इजक्वल टू C प्लस एल होता है। तो बेटा यहाँ एसेट्स तो दिया है A, और लायबिलिटीज में L भी दिया है, क्रेडिटर्स एंड एडवांस, लेकिन कैपिटल फंड यानी C जो है वो नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 20,75,000 में से ये 10 और 5 15,000 माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 20,60,000। तो दिस विल बी कॉल्ड कैपिटल फंड। और व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल फंड, since we are preparing balance sheet on 1st April, so it will be called opening balance. Okay, so I hope opening balance sheet is clear, so you can take the screenshot of it. निशा स्क्रीनशॉट हो गया? यस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बना? जो ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये सब, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लायबिलिटी में दिखाते हैं सबको, सॉरी एसेट्स में दिखाते हैं, पता होना चाहिए सबको। ओके, नेक्स्ट अब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो नाउ सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो वी विल राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020, राइट। सो कह रहा है यहाँ पे कि बनाना है आपको उस डेट को, तो कहाँ से सारा डेटा लेंगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से। ओके, तो रिसिप्ट पेमेंट में आप देखो रेंट पेड दिया है 15,000 का, बेटा आप देखोगे रिसिप्ट पेमेंट में बाई रेंट पेड 15,000 दिया, तो आप इसे लिख लो। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जब पढ़ोगे, सो यू विल फाइंड इन क्लोजिंग इंफॉर्मेशन इट इज सेइंग देयर वाज आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करेंट ईयर 2020 3,000, तो आप उसे ऐड कर दोगे, सो यू विल गेट 18,000। अब ओपनिंग इंफॉर्मेशन में देखोगे आउटस्टैंडिंग तुम्हारा रेंट है 5,000, क्रेडिटर्स फॉर रेंट का मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ठीक है। सो उसको माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, तो इसको माइनस करने पर हमने 13,000 दिखा दिया। दूसरा रेवेन्यू आइटम दिया है पेमेंट में सैलरी, तो सैलरी से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दिया है, डायरेक्टली 25,000 पेड है तो आप वही दिखा दोगे, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है। अब उसके बाद बोल रहा है कि बुक्स एंड बिल्डिंग्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। ओके, तो बुक्स और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बुक्स आपने जो खरीदा है उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 10%, ठीक है, तो 6,000 आ गया। और बिल्डिंग पे लगाया तो आ गया आपका 2 लाख, क्योंकि बुक्स और बिल्डिंग तुम्हारा जो था वो बिल्डिंग जो था वो 2 लाख रुपए का, ठीक है, और 20 लाख का था उसका 10% 2 लाख, और बुक 60,000 का उस पर 6,000। तो ये अब आपका आ गया डेप्रिसिएशन, द टोटल डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर 2,06,000, राइट। अब उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ तक तो हो गया। अब रिसिप्ट में आप पढ़ोगे कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया है 4,000 रुपये का, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 5,000, तो 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, so you have to write to loss on sale of old furniture 1,000, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आते हैं इनकम साइड में। तो इनकम कहाँ से हमें मिलेगा, रिसिप्ट साइड से। तो आप रिसिप्ट में देखो बैलेंस वीडी के ठीक नीचे बाय डोनेशन, मतलब टू डोनेशन दिया होगा 50,000 का, सो केवल डोनेशन दिया होता है तो उसे हम इनकम में दिखाते हैं, राइट, 50,000।
फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया होगा 1,50,000, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एडिशनल पे, चेक करेंगे कि सब्सक्रिप्शन का एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यू विल फाइंड इन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन कि देयर वाज एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 10,000, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आप ऐड कर देते हो। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर 8,000 था, क्लोजिंग में दिया होगा। तो एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर ऐड होता है, बताया था लास्ट क्लास में। तो इसको ऐड कर लो, 1,68,000 आया। अब माइनस क्या करेंगे, ठीक रिवर्स, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो करेंट ईयर में मिला है 2020 में, वो 2021 के लिए मिला है, तो उसको दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,42,000, राइट। अब आते हैं एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला है, तो पूरा का पूरा एंट्रेंस फी आप इनकम में दिखा देंगे 20,000, राइट। अब आते हैं हम लोग सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर में हम लोग बुक वैल्यू नहीं फाइंड करते, जो दिया है सेलिंग प्राइस उसी को डायरेक्टली दिखा देते हैं, क्योंकि वो रद्दी के भाव बिकता है और वो इनकम होता है, क्योंकि जो परचेस करते हैं तो एक्सपेंडिचर में चला जाता है। नेक्स्ट, ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी दिया हुआ है रिसिप्ट में 50,000 का, तो ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी आपका रेगुलर इनकम होता है, से हैंस टू बी शोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अब बेटा आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दो दिया है, एक जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिया है, एक टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है लास्ट में। सो हम लोग जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम में दिखाते हैं सर, राइट। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 36,000 is given itself in the receipt side, but when you will see in the payment side, it is saying that कि you have invested in general fund investment rupees 4 lakhs at the rate of 12%, ठीक है। तो 12% के रेट से फॉर द फुल ईयर इट विल बी 48,000, राइट। और बट मिला कितना है आपको 36,000। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 अभी आपको और लेना है, तो दिस इज कॉल्ड अक्रूड इंटरेस्ट, राइट। सो अक्रूड इंटरेस्ट को आप इसमें ऐड कर दोगे, सो टोटल हो जाएगा 48,000, राइट। 40,000 हो गया। अब आई थिंक कि देयर इज नो वन नथिंग एल्स कि दैट वी हैव टू एंटर। सो व्हेन यू विल सी ऑल द ब्लैक और ब्लू जो भी था सारा हमने फॉन्ट वाला लिख दिया, क्योंकि रेड वाला तो सब कैपिटल से रिलेटेड है। मैंने बोला था पिक करना है रेवेन्यू और कैपिटल को, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। हालांकि कैपिटल वाला बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, तो फटाफट आप पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल करने के बाद नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस। सो बैलेंस करने के लिए पहले हम लोग रफ में, वर्किंग नोट में टोटल करते हैं, या बहुत छोटा सा अमाउंट है तो हम लोग बाई ऑब्जर्वेशन भी हम लोग कर सकते हैं। सो देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड इज मोर, ठीक है, क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है। देख लो आप कि 50,000, 142, 22, 50 और 48, और इधर क्या है, एक 2,06,167 और 25, 13। तो जब आप टोटल कर रहे हो तो देख रहे हो कि क्रेडिट साइड का टोटल 3,12,000 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है डेबिट से। सो वही पैसा हम लोग 3,12,000 जो है ये डेबिट में भी लिख दिए। अब करेंगे क्या कि इस 3,12,000 में से ये ऊपर का 13, 25, 4,06,000 और 1,000 इन सबको ऐड करके 4 आइटम्स को माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करने पे 67,000 बैलेंस आ रहा है। तो ये बैलेंस किधर का ज़्यादा है, इनकम का। तो लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज़्यादा है इतना सा, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस, ठीक है, टू सरप्लस लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो आई होप कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू हैव अंडरस्टूड हाउ इज टू बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ receipt and payment account and additional information. In the opening balance sheet already I have taught in the same question कि information would be supplied to you, asset liability, so you will write the asset and liability and difference will be the capital fund. Okay, so now coming to the closing balance sheet. So first you tell you all have taken, Amrita you had taken the screenshot. Yes, sir. Okay बेटा, everything is getting समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नहीं आ रहा होगा तो अलग से पूछ लेना, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाया हुआ था।
So now this is the balance sheet, closing balance sheet. Okay. सो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको पता है कैसे बनाएंगे कि देखो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपने बनाया है तो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन प्लस क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन ये दोनों देख करके बनाते हैं। सो आप देखोगे कि बिल्डिंग आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में 20 लाख का दिया हुआ था, तो बिल्डिंग तो गायब होगा नहीं, बिल्डिंग तो रहेगा ही। और पेमेंट साइड में ध्यान रखना होगा, जब भी एसेट्स लिख रहे हो तो पेमेंट साइड को भी चेक करते जाओ, कोई नया एसेट्स तो नहीं खरीदा है। तो बिल्डिंग आपने 20 लाख रुपए का ओपनिंग दिया हुआ था और पेमेंट में कहीं पर भी बिल्डिंग परचेस नहीं दिया है, सो इसका मतलब 20 लाख का 20 लाख रहेगा। अब उसमें करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन के लिए बोला था इंफॉर्मेशन 10%, सो हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में आपने दिखाया था 2 लाख। सो लेस डेप्रिसिएशन 10% 2 लाख माइनस करके आप 18 लाख दिखा दिए, राइट। अब आते हैं फर्नीचर पे बेटा। सो फर्नीचर देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000 का था, राइट। फिर आप पेमेंट में देखो, पेमेंट साइड में आपने परचेस किया है फर्नीचर 50,000 का, तो टोटल आपके पास हो गया 65,000 का। फिर रिसिप्ट साइड में देखो इंफॉर्मेशन दिया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू जो है 5,000, तो हम बुक वैल्यू माइनस करते हैं हमेशा, सेलिंग प्राइस नहीं। तो लेस सेल ऑफ फर्नीचर, तो 65 माइनस 5 विल बी 60,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 10% कैसे डेप्रिसिएशन आया 6,000, तो अब देखो 60,000 बचा, तो इसी पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो इनकम एक्सपेंडिचर में आप दिखाए होंगे, ठीक है। क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में आप देखोगे कि 6,000 कहाँ से आ गया, तो 15,000 पहले से था, 50,000 का खरीदा था, 65,000, 5,000 का बेच दिया, बचा 60,000, तो 60,000 का 10% हमने 6,000 वहाँ दिखाया था, तो वही 6,000 यहाँ पर माइनस करेंगे, 54,000 आ गया। बाइसिकल पहले से नहीं था ओपनिंग बैलेंस शीट में, बट पेमेंट में दिया है कि बाइसिकल परचेस, तो बाइसिकल दिखाएंगे एसेट्स में 20,000 का, राइट। देखो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो एसेट्स में जाता है, तो लिखा है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो 3 लाख रुपए का दिया हुआ था, बट जो इन्वेस्टमेंट जो खरीदा गया था उसका डेट दिया है 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई को दिया है और 10% इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो 3 लाख का 10% फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल कम्स आउट 9 मंथ। अगर 9 मंथ होगा तो 9 मंथ का कैलकुलेट करो, तो सॉरी जुलाई में खरीदा है या कब है, एक मिनट चेक, आप लोग के पास है क्वेश्चन, देखो कि परचेज का डेट क्या दिया हुआ है, जुलाई ही है ना निशा। टूर्नामेंट परचेज का डेट पेमेंट साइट में क्या दिया हुआ है, जस्ट चेक इट। यस आई थिंक जुलाई है। सर जुलाई है। यस यस तो सर जुलाई है। हाँ हाँ ठीक है, तो 1 जुलाई से अगर आप कैलकुलेट करो 10% 3 लाख का, तो इट विल कम 22,500, राइट। 22,500 होगा, बट आप रिसिप्ट साइड में एकदम लास्ट में देखोगी तो लिखा होगा इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹15,000, तो मिला कितना है, सिर्फ 15,000। इसका मतलब 7,500 रुपये अभी और लेना है, तो ये क्या हो गया अक्रूड, तो अक्रूड को हम उसी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, तो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप देखोगे उसमें 15,000 मिला हुआ है, तो ये हो गया 3,07,500। अब आते हैं जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख का गिवन है और उस पर 4 लाख का 12% इंटरेस्ट है, तो कैलकुलेट करेंगे 48,000 आना चाहिए, और मिला कितना है रिसिप्ट में 36,000, जिसको कि हम इनकम में दिखा चुके हैं। सो 36,000 मिला है और मिलना चाहिए 48,000, तो 12,000 अक्रूड हो गया, तो वो अक्रूड हम यहाँ पर ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अक्रूड निकाल चुके हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, फिर भी एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, तो यहाँ ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट 2 बार दिखाते हैं, आपको पता होगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ऐड करके दिखा दिया। अब आते हैं कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिसिप्ट पेमेंट के पेमेंट साइड में बाई बैलेंस CD 6,12,000, ठीक है।
अब क्लोजिंग इंफॉर्मेशन में आप चेक करोगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है 8000 का, तो वो भी हम एसेट्स में दिखाएंगे। तो एसेट्स में लगभग हम लोग दिखा दिए हैं। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है क्रेडिटर्स फॉर रेंट 3000, यानी जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो क्लोजिंग 3000 है, दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मिला हुआ है क्लोजिंग इंफॉर्मेशन में दिया है 6000, उसको भी दिखाएंगे लायबिलिटी में। अब आते हैं टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड इज गिवन 3 lakhs, ठीक है। उसमें डोनेशन भी मिला है हमको टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड 1,20,000, तो उसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट मिला है ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15,000 एंड अक्रूड इंटरेस्ट 7,500, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4,42,500। माइनस क्या करेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज पेमेंट में दिया होगा, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेज माइनस करेंगे 30,000, तो आ गया फाइनल अमाउंट 4,12,500। तो फंड बेस्ड का अकाउंटिंग इसी तरह होता है, कोई भी इनकम रिसिप्ट होता है फंड से रिलेटेड ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। कल भी लास्ट क्लास में जो भी था पढ़ाया था मैंने ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग कैपिटल फंड। तो बेटा जनरल फंड जो होता है वो कैपिटल फंड का ही पार्ट होता है, तो कभी कभी कैपिटल फंड को ही हम जनरल फंड भी कहते हैं। सो कैपिटल फंड 20,60,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने फाइंड किया था, वो लिख लोगे। प्लस जनरल फंड 4 लाख का है, उसे लिख लोगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में था पहले से, तो जनरल फंड हो गया। अब उसके बाद सरप्लस, यानी जो नेट प्रॉफिट आता था या सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसे कैपिटल में ऐड करते थे, ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो 67,000 ऐड कर दिया। अब आप कहोगे कि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर ऐड कर लिया तो आ गया 25,27,000। लाइफ मेंबरशिप फी दिया इस साल 75,000 का, जो कि ये कैपिटल रिसिप्ट है तो लायबिलिटी में दिखाएंगे। लीगेसी 2,50,000 रिसीव हुआ है, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, हम लोग लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो आई होप कि all the information supplied by the question we have entered into the balance sheet. Okay, so now we need to make total. If we are totaling all these, so we will be getting 32,73,500 and 32,73,500 डन। सो बेटा आपका ये क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड कंप्लीट हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी क्वेश्चन को फिर से एक आध बार लगा डालो। सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन अ प्रॉपर वे कि क्या क्या आइटम है, कैसे मैंने काफ़ी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया था कि काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाए, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी आ गया, अक्रूड भी आ गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी आ गया, हर एक चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी हो गया, ठीक है। तो कोशिश किया था मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाए, इसको याद करने से काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी जितने क्लासेस मैंने लिए अभी अभी रिवीजन पिछले 2 3 4 क्लास में, जो भी कंज्यूमेबल गुड्स और टूर्नामेंट फंड और सब्सक्रिप्शन, so these are the things and this chapter will score, will gives you 10 marks. So this is very big score, 10 marks out of 80 from the single chapter. Okay, so well students, uh, so अब आप लोग बताइए कि कुछ आप लोगों को अलग से कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें? यस, कौन कौन है? अंजलि। यस सर। हाँ बेटा बताओ कि इस क्वेश्चन में कोई ही परेशानी, कोई दिक्कत जो समझ में ना आई हो? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके वेरी गुड। अमृता तुम्हें? यस सर, क्लियर है। ओके। गौरी शंकर? गौतम पाल? यस सर। क्लियर है, ठीक है। यस सर। गुड़िया? यस सर, क्लियर है। मृत्युंजय सिंह? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। एरियर सर बता दीजिए एरियर? हाँ सर। किसका, सब्सक्रिप्शन का?
यस सर। बेटा एरियर का नाम होता है आउटस्टैंडिंग। एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट नहीं आता है, मैंने तो उसका अकाउंट भी बताया था आपको। यस सर। सर बुक में सर कुछ अजीब टाइप का दिया है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा उसका। देखो बेटा, जब जब एरियर वर्ड यूज किया हो ना, एरियर का मतलब होता है ड्यू, बकाया। ठीक है, तो हम एरियर वाला कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे, तो हम बता देंगे कि देखो वही चीजें हैं जो टेबल मैंने बनाया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस और करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस। तो अगर एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर है तो माइनस, एरियर ऑफ करेंट ईयर है तो प्लस करेंगे। तो उसमें और भी कुछ दिया हुआ है कि स्टील इन एरियर वगैरह दिया है। यस सर, ऐसा ही कुछ सर है सर उस क्वेश्चन में। अच्छा, तो कौन सा क्वेश्चन है? कोई बुक का, बुक पे पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कुछ बताओ तो हम देख सकते। यस सर, बता रहे। हाँ बताइए। तब तक मृत्युंजय बता रहे हैं, बाकी और लोग तब से बताओ। निशा, यस सर, क्लियर है। प्रियेश, यस सर, क्लियर है सर। का, यस सर, क्लियर है। साक्ष्य सिंह, साक्ष्य सिंह, शिवानी, यस सर। ए, यस सर। निष्का, यस सर, क्लियर है। तान्या, यस सर। ए। उत्कर्ष बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। देखो अभी एक कंफ्यूजन हमसे ये इन्होंने पूछा मृत्युंजय ने, अभी मैं देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग देख लो। देखो एक टॉपिक मुझे बताना था, आप लोगों ने में से कोई भी मुझे याद नहीं दिलाया। टॉपिक तो पढ़ा चुके हैं, मैंने बोला था फंड में जब कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए फंड मिलता है तो उसका मैं बताऊंगा कैसे होता है। वो किसी ने पूछा नहीं, जबकि पिछले क्लास में मैंने बोला था मेरे को याद दिलाना, मेरे को याद खुद दिलाना पड़ रहा है। चलो अच्छा, बता देंगे। पहले मृत्युंजय का मृत्युंजय बताइए कौन सा है? सर क्वेश्चन सर वो सर बुक का नहीं था सर, पर बुक से रिलेटेड ही था सर। सर उसमें ये था सर, वही सर स्टील सर था कि मतलब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन टाइप करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने आप देखेंगे। 2 मिनट लगेगा, जब सभी लोग हैं तो देख लो भाई, मृत्युंजय ने क्वेश्चन उठाया है तो कुछ होगा। 1 मिनट। ओके, यस। सो मृत्युंजय आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल बना ले रहा हूँ। चलो ठीक। सो बेटा देखो मृत्युंजय, इसमें मान लो कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता है, या 1 मिनट, 1 2 3 4, ठीक। मान लो कि ऊपर तुम्हारा सबको दिख रहा है प्रॉपर जो मैं लिख रहा हूँ? मृत्युंजय दिख रहा सर सर कुछ नहीं दिख रहा है सर। है? अभी कुछ नहीं दिख रहा है? अच्छा, देगा। नेट अभी गायब हो गया था। अभी ये पुअर क्वालिटी नेट का आ रहा है। यस सर, दिख दिख रहा रहा है। है? यस सर। हाँ, देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये दिखा? 1 मिनट। दिखा ये लिखा हुआ सभी को? यस सर। ओके,
तो आप सभी लोग ध्यान दो भाई, मैं लिख रहा हूँ यहाँ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। चलो, ये आपका रिसिप्ट है, ठीक है, ये पेमेंट है, ठीक। यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस BD, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मान लो कि मैंने लिख दिया 50,000, ठीक। अब आते हैं टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, और मैं यहाँ लिख दिया 2018, 2019 और 2020। इससे मतलब समझ लो कि बीच वाला जो है वो करेंट ईयर है। या तो मैं रिसिप्ट पेमेंट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा है। फॉर द ईयर डेट 31st मार्च 2019, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा करंट ईयर कौन सा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5,000, ठीक, और यहाँ लिख दे रहा हूँ 80,000, और यहाँ लिख दे रहा हूँ 10,000, ठीक है। अब बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखने जा रहा हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों का ओके, ठीक है। सो एक मिनट, ये विजुअल है फ़ॉन्ट मृत्युंजय, फ़ॉन्ट विजुअल है? यस सर। ओके, सो कह रहा है कि देयर वाज सब्सक्रिप्शन, ऐसे लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन वाज स्टिल इन एरियर rupees 3,000 for the year 31st March 2018, and subscription charge outstanding for outstanding as on 31st March 2019 rupees 15,000, ठीक है। और you are required to show subscription and expenditure account, and so prepare closing बैलेंस शीट। क्वेश्चन ऐसा ही फॉर्म में है, मतलब कुछ इधर उधर चेंज होगा, बट जो तुम पूछना चाह रहे हो वो इसमें है कि नहीं यस सर है इसमें। है? यस। ठीक है, तो ये है। तो अब इसको हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। तो बेटा सबसे पहले आप याद देखो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना बाकी था, कौन बता सकता है? सर उसमें स्टील भी करके दिया था, स्टील अपीयर इन जैसे सर उतने ईयर में सर, पिछले साल का ईयर है सर 20 एक, जैसे। एक मिनट, स्टील इन एरियर लिखे थे कहाँ क्या? एक मिनट, ये हम लिखे थे, इरेज हो गया क्या इधर उधर? ऑन 31st मार्च कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई इसमें तो।
कहाँ चला गया? मैंने लिखा था एडिशनल ये, रुको एक मिनट, ऊपर चला गया लग रहा है, अभी आ रहा है ये, अब आया यस सर। है। ओके, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन वाज स्टिल इन एरियर। सो बताओ पिछले साल का कितना बाकी था, इसको देख के क्या लग रहा है? अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन एरियर पिछले साल का कितना हम दिखाएंगे? निशा? सर 3000। सर 3000। अच्छा, और उत्कर्ष? कौन कौन है फटाफट बताइए भाई, यही तो देखना है कितने लोग कर पा रहे हैं। सर 3000। 3000 सभी लोग कह रहे हैं, मतलब आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, देखो आप सभी लोग, यहाँ कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो 5000 रिसीव हुआ है 2018 का। कब रिसीव हुआ है? 19 में, यानी पिछले साल का बाकी था 5000। और अभी भी कह रहा है एडिशनल में कि सब्सक्रिप्शन वाज स्टिल इन एरियर, अभी भी बाकी था 3018 का, मतलब 5000 मिल गया था और 3000 अभी भी बाकी था। तो टोटल कितना बाकी रहा होगा? 8000 रहा होगा ना पिछले साल, क्यों? यस सर। तो बेटा स्टिल इन एरियर का मतलब अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है का मतलब क्या हुआ? जोर दिया जा रहा है ना, अभी भी स्टिल, इसका मतलब कुछ मिल चुका है। तो कितना मिला है ऊपर? 5000, और 3000 अभी भी बाकी है, तो टोटल 8000 होगा। इसका हम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाकर दिखाते हैं सभी लोगों को, फटाफट आप बना लो, ठीक है। तो यहाँ हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। एज ऑन 31 लिख लो, या तो 1 अप्रैल 2018, यही होगा ओपनिंग में, ठीक है। और फॉर्मेट बैलेंस शीट का बना लो, ये हो गया। पहले बैलेंस शीट क्लियर होगा तो हमारा वो सब क्लियर हो जाएगा ओपनिंग का। देखो यार, लायबिलिटीज रुपीज, सर ये 2018 होगा कि 19? डेट क्या लिखा है हमने, देखो अगर 1 अप्रैल 2018 लिखा है तो क्लोजिंग डेट क्या आएगा? बताओ शिवानी। सर 19। 19 आएगा ना, तो ये बिगनिंग हुआ ना यस सर। 19 यस। का, ठीक है। यस सर। या तो 31 मार्च 18 लिखो तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग हो जाएगा, और करेंट ईयर का बिगनिंग, दोनों सेम होता है, सिर्फ 1 डे का डिफरेंस होता यस सर, ये ओपनिंग है। यस सर। है ना। सही बना रहे हैं ना हम? सब्सक्रिप्शन एरियर, एरियर कह लो चाहे इसी को आउटस्टैंडिंग कह लो, ठीक है। तो कितना था पिछले साल, कैसे पता चलेगा? 8000 रुपये था, 5000 इस साल मिल गया, 3000 अभी भी बाकी है, तो कुल 8000 था। यही है ओपनिंग, पिछले साल का एडवांस तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब अरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ यहीं पे, तो 4 कॉलम बनेंगे इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर मैं रख दिया, और आप लोग भी बनाइए। देखिए भाई मैं कंप्यूटर में बना रहा हूँ, अगर इस तरीके से, तो आप लोग को तो पेन पेपर फटाफट बनाना चाहिए। एक्सपेंडिचर for the year ended 31st March 2019, ठीक है। ये आप लिखो, ये हो जाएगा। इसको मैं अभी बड़ा कर दे रहा हूँ, पहले टेबल को थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है। ठीक, ये हो गया।
आपका इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्म ऊपर स्टेटमेंट, और ये हो गया ठीक। सो ओके, ओके। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाते हैं? इनकम साइड में है। इनकम में दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर में बस नाम लिख के छोड़ दो। एक्सपेंडिचर में कुछ करना नहीं है हमको अभी। सो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन बेटा आपको मिला तो है ज़्यादा, तो करेंट ईयर का कितना मिला सिर्फ उसे आप लिखो। तो करेंट ईयर में कितना मिला है? वन करेंट ईयर में कितना मिला सब्सक्रिप्शन, आप बताइए। 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 रुपया करेंट ईयर में मिला है, वो लिख लिया। अब उसमें हम ऐड क्या करते हैं और लेस क्या करते हैं? तो ऐड पिछले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस करते तो है नहीं, ठीक है। और अगले साल का एडवांस भी 80,000 में इंक्लूड है नहीं, तो सिर्फ ऐड करेंगे करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019। सो कितना है 19 का, कौन बताएगा? क्वेश्चन आपके सामने है। 2019 का आउटस्टैंडिंग कितना है जो कि ऐड करना चाहिए हमें, कौन बताएगा? यहीं पे आप लोग का एग्जाम है, समझ लो। जो सही बताया वो पास हो गया। 15,000 सर। नो, रॉन्ग। सर 595। नो 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 बेटा, आप लोग को बताया था एक बार बहुत पहले, एज ऑन और फॉर वाला कॉन्सेप्ट है ना, और नहीं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बताया था। तो देखो ये एज ऑन आउटस्टैंडिंग है। एज ऑन का मतलब क्या होता है कि करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर एज ऑन दिया है ना। सो एज ऑन 15,000 है, तो बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है इसमें? 3,000। पिछले साल का बैलेंस 3,000 है, टोटल 8,000 था ओपनिंग बैलेंस शीट में, और 5,000 मिल गया, तो बैलेंस कितना बचा है बता रहा है? 3,000, स्टिल इन एरियर। सो यानी 15,000 रुपये में से पिछले साल वाला घटा देंगे। कब घटाएंगे? जब यहाँ एज ऑन करके दिया रहेगा, या एज एट, या टोटल करके दिया रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि 15,000 रुपये में करेंट ईयर का भी है, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का जो बचा हुआ अभी नहीं मिला है वो भी है। तो 15,000 में से 3,000 घटा दो तो करेंट ईयर का कितना आएगा? 12,000। ये सब लिखवाए थे पहले हम, और हालांकि नहीं आता तो अकाउंट बना के चेक कर लो। भी अकाउंट रिवीजन बोर्ड पे पढ़ाए थे ना, उसका अकाउंट बनाएंगे तो भी आ जाएगा। सो यहाँ हो गया 92,000 मिलेगा आपको, मतलब मिलना है, ठीक है। ये हो गया सब्सक्रिप्शन आपका टोटल। अब उसके बाद अब क्या करना है कि सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाना है और तो कुछ है नहीं, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट देखो मैं बता देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, खाली डेट चेंज करना है। यस, ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग से पहले डेट आप लिख लोगे, यहाँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना लिखेंगे ये आपको दिखाना है। क्लोजिंग में ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ अलग से, अभी पहले ये बता दूँ। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 कितना बाकी रह गया है? फॉर 2018 3,000, ठीक है। एंड फॉर 2019 देखो, फॉर का मतलब होता है सिर्फ उसी साल का, और एज ऑन का मतलब होता है तुम्हारा टोटल। देखो ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया तो एज ऑन लिखे हैं या एज एट लिखते हैं, तो इसका मतलब टोटल होता है बाकी, है ना। तो 12,000, तो टोटल अब आपका कितना हो गया? 15,000। इसको हम दिखा देंगे यहाँ 15,000। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो लायबिलिटी में जाता है। तो करेंट ईयर का एडवांस देखो आप क्वेश्चन में दिया होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर दिया है 10,000 आई थिंक, तो 10,000 रुपये दिखा दिया। अब यहीं पर आप लोगों को डेट लिखना था। अब डेट चाहो तो आप यहाँ लिख सकते थे कि डेट में यहाँ पर बैलेंस शीट
as on 31st March 2019 जब बैलेंस शीट आपका क्लोजिंग हो गया तो समझ में आया मृत्युंजय? यस सर, यस सर। बेटा स्टिल वर्ड पे फोकस करो। स्टिल का मतलब कि केवल एरियर होता तो मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग बात कर रहा है। स्टिल इन एरियर का मतलब कि कुछ मिल चुका है कुछ बाकी है। जो स्टिल इन एरियर कह रहा है उतना ही बाकी है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टिल इन एरियर और जो मिल चुका दोनों ऐड करके दिखाते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर दिया होता तब तो वही हम 15,000 पूरा ऐड कर देते हैं, लेकिन एज ऑन दिया था तो एज ऑन में करेंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो बैलेंस प्रीवियस ईयर का 3,000 था। देखो 15,000 टोटल था, 3,000 पिछले साल का, 12,000 इस साल का, इसलिए हमने 12,000 ऐड किया, है ना। चलो समझ में आ गया, आई होप। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ओके। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने क्वेश्चन अराइज किया, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। और कुछ तो नहीं पूछना है?